Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to YourPedia. So I have a very important announcement to make. So today we are going to start a new batch for GATE 2022 for civil engineering, and we are starting with RCC, Reinforced Cement Concrete. Now in this subject, what actually we will be covering and when it will start. So it will be starting at every day from 9 p.m. onwards. Okay, this will be a premiere. All right, and the topics that will be covered will be discussed to you, and what you need to do is you need to take a pen and a copy and please make proper notes while studying so that it helps you in retaining everything. Now what else will be covered? We'll be covering topics, complete subject will be covered. Apart from that, we'll be taking interview questions as well, because you will be studying this RCC for the point of view of doing either MTech or PhD or for going for PSUs or engineering services anywhere. So interview are a must. So the number of questions related to interview will be taken care of. Apart from that, we'll also look at what are the projects that you can make if you are studying RCC. Okay, projects related to RCC. This will be useful for third year and final year students. Also, we are exploring some abroad opportunities. Like if you are from BTech student, then what are the abroad opportunities for doing internship? If you have done your BTech, then MS abroad. If you have done MTech, then PhD abroad. We'll look into that opportunities also. Plus your post-GATE counseling. Okay, post-GATE counseling, we'll look at that also. So this is not just conventional RCC for GATE we are studying. We are taking care of complete career. Okay, your complete career. So hold tight, make notes, do proper calculation, and I wish you all the best for your exam. Thank you. Start करने वाले हैं a very important subject, reinforced cement concrete, RCC. This is reinforced cement and lastly concrete. So we are going to start off with reinforced cement concrete. अब ये टॉपिक गेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, वेटेज की बात करेंगे, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं जो आपको तैयार करना है, एंड इफ़ यू वांट टू रेफर एनी काइंड ऑफ बुक तो वो आप कौन सी रेफर कर सकते हैं. हालांकि माई नोट्स विल बी सफिशिएंट इन अ सेंस वी विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग एंड लर्निंग द टोटल कोड, कंप्लीट कोड वी विल बी टेकिंग. Okay, so let's talk about details of this subject. First of all, RCC, roughly it will come for around 4 to 5 marks in GATE, and ESE it is for around 80 to 100 marks. 4 to 5 marks is the typical range. Sometimes it goes to 6 or 7 marks also, and sometimes it will come for 3 marks also. Average we have done, तो average हमारे पास कुछ आया 4 to 5 marks का average है, typical over the last 10-15 years. अब इसके कंटेंट्स में टोटली आई हैव डिवाइडेड RCC इनटू 7 मॉड्यूल्स. ओके, मॉड्यूल 1 दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट. एवरी ईयर फ्रॉम गेट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको इससे क्वेश्चन 100% आना है. ओके, 100% चांस है कि इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आना है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मॉड्यूल 2, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम यूजिंग WSM एंड LSM. अब यहाँ पे एग्जाम में जो आता है दैट इज ओनली दिस टॉपिक. एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ LSM है, बट हमें WSM भी पढ़ना पड़ता है, बिकॉज जब तक WSM नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें LSM बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आएगा. WSM इज नॉट फॉर गेट, इट इज नॉट फॉर गेट, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ सकता है. गेट में नहीं आएगा, बट पढ़ना क्यों जरूरी है? जब तक WSM नहीं पढ़ेंगे तब तक LSM अच्छे से समझ में नहीं आएगा. This is the most important topic, most important I will say. Analysis and design of beam, सबसे ज़्यादा most important part. Analysis मतलब हमें बीम का लोड कैरिंग कैपेसिटी बताना है कि वो कितना लोड ले सकता है. डिज़ाइन करने का मतलब हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी पता है दैट द बीम कैन कैरी फॉर एग्जांपल 100 किलो न्यूटन मीटर. ओके, इतना लोड ले सकता है, तो उसके लिए विड्थ और डेप्थ कितना रखें, ये डिज़ाइन करने का मतलब हुआ. इससे 60% क्वेश्चन इसी से आते हैं पूरे RCC में. ओके, 60% क्वेश्चन इसी से आते हैं. 10% क्वेश्चन इससे आता है फर्स्ट टॉपिक से. shear, torsion, bond, development length, सब कुछ मिला के it will come for approximately let's say 5%, not more than that.
तो ये इतना ज़्यादा वेटेज का नहीं है, 5% के आसपास है। मॉड्यूल 4 इज कॉलम्स, ठीक ठाक है। इन दोनों को मिलाते स्लैब से कोई क्वेश्चन नहीं आता, स्टिल विल स्टडी स्लैब, स्लैब का बेसिक देखेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। इफ़ यू सी इन द लास्ट 10 और 15 ईयर्स हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं है। कॉलम से यस देर आर चांसेस कि 5% कुछ क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, देर आर चांसेस कि कॉलम से आ सकते हैं। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉड्यूल 6, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। Okay, after design and analysis of beam, 60%, the next important topic is pre-stressed concrete. It will be approximately 15%. 15%. Okay, and remaining part, codal provisions is only 5%. Okay, तो जो 5% लिख रखा है ना, वो रेयर क्वेश्चंस होते हैं जो कभी 5 साल में, 6 साल में किसी एक बार आ जाएंगे। ओके, तो इसलिए हम इन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट जो मेजर फोकस है, द मेजर फोकस हैज़ टू बी ऑन मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 6. मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 6 आर आवर एरिया ऑफ फोकस. ऑल्सो मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन पार्ट, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आता है. विदाउट इंट्रोडक्शन पार्ट आपको एनालिसिस वगैरह ये सब होगा नहीं अच्छे से. एंड ऑल्सो ये जो हम बात कर रहे हैं, शियर, टॉर्जन, बॉन्ड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को पढ़ना है फ्रॉम WSM एंड LSM. फ्रॉम WSM एंड LSM सारी चीज़ें पढ़नी है. मॉड्यूल 6 इज अ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट. मॉड्यूल 7 इज मिसलिनियस कोडल प्रोविजंस. कुछ एक्स्ट्रा कोडल प्रोविजंस होते हैं. हालांकि हम जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे वैसे वैसे हम कोडल प्रोविजंस लिखते जाएंगे, करते जाएंगे, बट स्टिल लास्ट में कुछ कोडल प्रोविजंस रह जाते हैं. तो उसके हम कोडल प्रोविजंस के नोट्स लिख लेंगे कि कौन कौन से कोडल प्रोविजन इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप किसी बुक को रेफर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत है, सो द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट इज पिल्लई एंड मेनन. दिस बुक बाय फार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बेस्ट बुक अवेलेबल. बट लेट मी टेल यू, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, अगर आप नोट्स कॉपी करते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, ओके, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, ठीक है, तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बुक की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी व्हेन यू विल गो टू इंटरव्यू. जब आप इंटरव्यू में जाओगे तब आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है. एल्स जब तक हमारे गेट की बात है, ओके, तब तक आपको इस बुक की ज़रूरत नहीं है. ओके, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी. You can contact me. अगर आपको ये बुक नहीं मिल रही है, you can contact me. I can give you the PDF of this book. Okay, the PDF of this book will be available, so that you don't need to buy this book और hard copy लेने की ज़रूरत नहीं. Okay, so let's start with the introduction part. Let's start with our module 1. That is introduction. तो हम सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, और इससे ये जब हमारा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 10% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन बनता है. ठीक है, 10% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन बनता है. तो देखें यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं RCC. ओके, एक एक टर्म को देख लेते हैं. RCC. ओके, दिस इज reinforced cement concrete. ठीक है, reinforced cement concrete. अब इसको देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनफोर्समेंट. ये बहुत जरूरी है. ये जो हमने रेनफोर्स लिखा है, इसमें इसका मतलब रेनफोर्समेंट है. तो रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है? क्या रेनफोर्समेंट का मतलब स्टील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंटरव्यूज में ये जरूर पूछते हैं कि आप हमें बताएं व्हाट डू यू मीन बाय रेनफोर्समेंट. रेनफोर्समेंट से आप क्या समझते हैं? तो रेनफोर्समेंट कोई सा भी ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रेजेंस से दूसरे किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है. एनी मटेरियल
any material which increases the strength of another, or let's say other material, ठीक है। जैसे हमें सर्दियों में जब ठंड लगती है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट करने के लिए वी वेयर मोर क्लोथ्स, जैकेट्स डाल लेंगे, शॉल्स डाल लेंगे, ये सारी चीजें डाल लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रेनफोर्समेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीमेंट कंक्रीट। ये सारे प्लीज नोट बनाते रहना, कंप्लीट सब्जेक्ट होगा तो आपको नोट्स चाहिएंगे। सीमेंट कंक्रीट, सबसे पहले देखते हैं कि ये कंक्रीट क्या है। ओके, कंक्रीट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ a binding material, it is a mixture of binding material, aggregates and water। ठीक है, क्या क्या, तीन मटेरियल हैं इसके अंदर, एक है बाइंडिंग मटेरियल, एक है एग्रीगेट, और तीसरा है वाटर। ऑब्वियसली एडमिक्सचर्स एंड ऑल वो चीजें भी आएंगी, बट ये तीन हमने बेसिक चीजें लिखी हैं। ओके, बेसिक चीजें। नाउ जब हम सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं तो सीमेंट कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल इज सीमेंट। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट में हमारा बाइंडिंग मटेरियल क्या है, सीमेंट है। एग्रीगेट हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है फाइन एग्रीगेट और एक होगा कोर्स एग्रीगेट। ओके, फाइन एग्रीगेट का मतलब सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट का मतलब ग्रेवल। ठीक है, सैंड एंड ग्रेवल। अब देखो यहां पे, ये हमने बेसिक पढ़ लिया, अभी इसके कॉम्पोजिशन एंड ऑल ये सारी चीजें भी देखेंगे। अब यहां पे रेनफोर्समेंट, एज अ रेनफोर्समेंट वी यूज स्टील। ओके, स्टील। अब यहां पे स्टील जो हम यूज करते हैं इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। द स्टील दैट वी यूज, एक होता है माइल्ड स्टील, और एक हाई टेंसाइल स्टील। HYSD बार्स भी बोलते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, उनको भी कहते हैं, बट ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। माइल्ड स्टील यानी दैट इज Fe250, हाई टेंसाइल स्टील में आता है HYSD बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं Fe415 एंड Fe500। ठीक है, Fe415 एंड Fe500। ओके, आया समझे, ये बेसिक आउटलाइन हो गया। आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट का मतलब कोई सा भी ऐसा मटेरियल जिसकी प्रेजेंस से दूसरे मटेरियल का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। ओके, अब रेनफोर्समेंट हमारे लिए क्या है, स्टील है। ओके, तो स्टील हो गया। स्टील दो तरीके का हम लोग यूज कर सकते हैं, एक तो Fe250, एक Fe415 500, डिनोटेड बाय माइल्ड स्टील और हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। अब कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट का मतलब क्या हो रहा है, अभी कंक्रीट की बात करेंगे। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट एंड वाटर। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट एंड वाटर। बाइंडिंग मटेरियल इस केस में हमारा क्या है, सीमेंट है। लाइम कंक्रीट भी आता है जिसके अंदर हम लोग लाइम यूज करते हैं। लाइक लेट्स से 200-250 साल पहले क्या हुआ था, जब तक सीमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, ओके, और लेट्स से इन्वेंट नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं, इन्वेंट नहीं हुआ था, तब तक वी यूज टू यूज लाइम हम लोग यूज करते थे, चूना जिसे कहते हैं। तो अब जितनी भी दीवारें देखोगे पहले वो सारे चूने की बनी होती थी। दैट इज ऑल्सो बाइंडिंग मटेरियल, बट उसमें क्या इश्यूज थे कि एक तो उसमें स्वेलिंग होता था, प्लस उसका स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं आता है। सीमेंट में स्वेलिंग नहीं होता है और इसका स्ट्रेंथ मोर है देन लाइम, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, नाउ आप लोग ये सारा लिख लो।
ओके, अब ये जो सीमेंट कंक्रीट है इसका डेजिग्नेशन पे आते हैं। सीमेंट कंक्रीट, इट इज डिनोटेड बाय M एंड अ नंबर, ठीक है, M और एक नंबर से इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है M15, ओके, M15, यहाँ पे M क्या डिनोट कर रहा है? M is denoting that it is a mixture of cement, sand and aggregate, cement, sand and aggregate in a fixed proportion, or let's say in a certain proportion, दूसरे कलर से लिख रहा हूं ताकि ध्यान रहे, so that the strength obtained at 28 days of curing is 28 days of curing is 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आया? 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M क्या बताता है कि ये कोई मिक्सचर है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का, कुछ इस प्रोपोर्शन में, इन सम प्रोपोर्शन, ताकि इसका जो स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग कितना आना चाहिए? 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, समझ में आया? अब इसका कंपोजिशन क्या है, सारी चीजें देखेंगे। इसके जैसा हो सकता है M20, M25, M30, लाइकवाइज इस तरीके से, ठीक है। तो हमें कॉम्पोजिशन देखना है अभी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा और एक इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है कि हम लोग M15 लिख रहे हैं, M20 लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं, 30 लिख रहे हैं, तो क्या M23 होता है या M17, M16 ये होता है कि नहीं होता है? तो द आंसर इज यस, M16, M17 भी हम लोग बना सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड टू मेक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब और थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम लोग 5 के मल्टीपल्स में लिखते हैं, बिकॉज M100 बनाना आसान है, M99, 98, 97 बनाने में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी अराइज हो जाएगी, इसलिए हम लोग 5 के मल्टीपल्स में रखते हैं। ओके, सो लेट्स सी M15, 1:2:4, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट 1:2:4, ध्यान रखना है। M20, 1:1.5:3, M25, 1:1:2, ये सारे कौन से रेशियो हैं? दिस इज सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। ओके, लाइकवाइज यहाँ पे M15 है, थोड़ा लोअर वर्जन पे जाएंगे, M10 भी आता है, M5 भी आता है। ओके, M10 के लिए कितना होता है? 1:3:6, M5 के लिए 1:5:10 और 1:6:12, इसके लिए एक और होता है 1:4:8। जितने छोटे लेवल पे जाते हैं ना, उसमें इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, जो स्ट्रेंथ आता है वो ऑलमोस्ट मोर और लेस दैट इज सेम, इक्वल स्ट्रेंथ ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली क्या है, ये आप हर जगह देखोगे सैंड हम जितना डालते हैं उसका डबल हम लोग क्या डालते हैं? एग्रीगेट डाल रहे हैं सभी जगह। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट छोड़ दो, सीमेंट सारे यूनिट्स बन रहे, सैंड और एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्रेवल है। ओके, तो जो ग्रेवल हम लोग डाल रहे हैं और सैंड जो डाल रहे हैं, ऑलवेज इन द रेशियो 1:2। सैंड अगर 1 डाला है तो ग्रेवल हमें कितना डालना है? 2 यूनिट डालना है, 2 यूनिट्स डालना है। ओके, M15, 20, 25, 10, 5, प्लीज़ इन सबको नोट कर लो, ये सारे बहुत ज़रूरी हैं, आपको याद होने चाहिए फॉर इंटरव्यू पर्पस। इंटरव्यू में ये चीज़ पूछ लेते हैं। देखो, आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक सिविल इंजीनियर को आता है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, आपका इंटरव्यू तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि आपसे कुछ आरसीसी के सवाल ना पूछ लें। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिनोटेड बाय M15। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखते हैं, एक नोट लिखना है।
और सबने लिख लिया होगा, ठीक है। प्लीज़ मेक प्रॉपर नोट्स, नोट्स बनाते जाना है, जो जो चीज़ें मैं समझाता जा रहा हूँ नोट्स बनाते जाओ, नहीं तो स्किप हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं, नोट करके लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, IS 456-2000 is used for RCC and PCC, is used for RCC and PCC, reinforced cement concrete and plain cement concrete। देखो प्लेन सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी में क्या डिफरेंस है, इसी नोट के अंदर ब्रीफली मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो कि ये बीम है, ओके, एंड इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ कंक्रीट ओनली। यहाँ पे लिख लेते हैं ओनली कंक्रीट, इसमें कोई स्टील नहीं है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा प्रॉपर्टी क्या होता है, कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन। सेकेंड पॉइंट, ऐसा बोलते हैं कि कंक्रीट इज बैड और वीक इन टेंशन, ठीक है, ऐसा सब लोग बोलते हैं, ऐसा है। थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट करता हूँ, कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत अच्छा है, बट कंक्रीट इज बैड इन बेंडिंग टेंशन। इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है, बेंडिंग टेंशन ना कि टेंशन, ओके। अब कंक्रीट को टेंशन का मतलब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस, ये मेरे पास कोई ब्लॉक है, कंक्रीट का ब्लॉक है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये नहीं टूटेगा क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, बट अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तब भी ये नहीं टूटेगा, ओके, तब भी ऐसे नहीं टूटेगा। ये टेंशन में भी ये अच्छा है बट कंपैरेटिवली वीक है, बट जब मैं इसको ऐसे करके यूं कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, ऐसे बेंड करने की कोशिश करूंगा, तब ऑब्वियसली इस जगह पर क्रैक्स आ जाएंगे, बॉटम में क्या आएंगे, क्रैक्स आएंगे, ठीक है। तो कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल एंड इट इज वीक इन बेंडिंग टेंशन। ध्यान रखना है, जब कंक्रीट को बेंड करते हैं, ओके, बेंड करते हैं, ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा, तो ये इस टेंशन वाले जोन में अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसे खींचेंगे इसको, इस तरह से पी लोड लगाएंगे तो शायद ये झेल जाए, बट अगर इसको यहां पे ऐसे पी लोड लगाएंगे तब जो टेंशन जोन अराइज होता है वो नहीं झेल पाएगा, ओके। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बेंडिंग टेंशन में अच्छा नहीं है। इसको करेक्ट कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि वो टेंशन में अच्छा नहीं है, करेक्ट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरसीसी। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आरसीसी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली। ये हमारे लिए हो गया, दिस इज आर पीसीसी। प्लीज ये सब नोट कर लेना है, आप लोगों को नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरसीसी। अब आरसीसी में क्या होता है, जिस पार्ट में ये वीक है, जहां पे क्रैक्स आते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग रेनफोर्समेंट लगाते हैं, ओके। जैसे ये बीम है, सेम बीम मान लेते हैं, और अगर यहां पे ऐसा कोई पी लोड आ रहा था तो हम इस बीम में क्या करते हैं, अगर इसमें क्रैक्स ऐसे आ रहे हैं, इस तरीके से क्रैक्स आ रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर रेनफोर्समेंट लगेगा, ओके। तो परपेंडिकुलर यानी कुछ इस तरीके से, तो दिस इज द रेनफोर्समेंट यानी स्टील। नाउ दिस इज गुड इन कंप्रेशन, also good in बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके अंदर भी अच्छा है, ठीक है। IS 456-2000 is used for RCC and PCC. This 2000 is the year in which this code was implemented or executed. Okay, IS 456 उसका जस्ट नंबर है, ये हमारा नोट 1 हुआ। सेकेंड नोट लिखना है, उसी नोट के अंदर सेकेंड पॉइंट, ओके, आप लोगों ने लिखा नहीं होगा, सो प्लीज नोट दिस डाउन, इन सारी चीज को लिख लो। ओके,
लिख लिया? क्लास में कोई फालतू बात नहीं, हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। वी आर कंसर्न्ड अबाउट योर करियर। आपका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर देन टॉकिंग अननेसेसरी थिंग्स, विल जस्ट कंप्लीटली फोकस ऑन स्टडीज जो आपको गेट के लिए रेलेवेंट है। नोट 2 में लिखना है, एज पर IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC इज M20। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC इज M20। अब इसमें एक नोट लिख लेते हैं, एक और नोट करके लिखना है। Why we use steel as reinforcement? ठीक है, हम लोग स्टील को यूज क्यों कर रहे हैं एज रेनफोर्समेंट? कोई और मटेरियल हम लोग यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ओनली स्टील क्यों यूज कर रहे हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके आंसर में लिखेंगे सबसे पहला, गिव्स स्ट्रेंथ इन बेंडिंग टेंशन। ओके, गिव्स स्ट्रेंथ इन बेंडिंग टेंशन। बी पार्ट, सेकेंड इसका आंसर क्या है? एक तो इट हैज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्ट सेम नहीं, पॉइजन्स रेशियो एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सी, it is easily available and economical as compared to other options। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। कोई अगर और ऑप्शन भी पहले कुछ था तो उसके कंपैरिजन में ये आसानी से मिल जाता है, प्लस इसका जो कॉस्ट है, इकोनॉमी है, वो भी कम है, इसलिए हम स्टील को यूज करते हैं एज अ रेनफोर्समेंट। इट इज गुड इन टेंशन, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, बेंडिंग टेंशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंटरव्यू में जो अराइज हो सकता है, ओके, इसी नोट के अंदर, इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? प्लीज एज इट इज लिखते जाना, नोट्स बनाते जाओ। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस of using steel as reinforcement? ठीक है, what are the disadvantages of using steel as reinforcement? अब हमने इतने सारे एडवांटेजेस की बात कर ली, तो जिसका भी एडवांटेज होता है उसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज जरूर होता है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट ए करके लिखते हैं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर स्टील कैन रस्ट। ठीक है, स्टील कैन रस्ट, स्टील में रस्टिंग हो सकती है, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज। सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं, steel loses its strength as temperature is increased। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता होती। ठीक है, जैसे ही स्टील का टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, बढ़ता है, तो उसका स्ट्रेंथ लूज होता है, तभी तो हम लोग उसको किसी और शेप में डाल पाते हैं, अदरवाइज शेप में कैसे डाल पाएंगे, किसी भी और डिफरेंट शेप में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये सारी चीजें लिख लो, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लीज राइट दिस डाउन, इसको एज इट इज लिख लो, आपकी नोटबुक में लिखो, ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सकोगे।
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मटेरियल्स हमने देख लिए, दैट इज स्टील एंड कंक्रीट। एक और बार करके लिख लेते हैं, मटेरियल्स स्टील एंड कंक्रीट। स्टील को हम क्यों यूज करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीजें देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें लिखना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट। टाइप्स ऑफ कंक्रीट, ओके। सबसे पहला हमारा आता है ऑर्डिनरी कंक्रीट। कहां से कहां तक, M10 to M20। स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 to M55। थर्ड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M60 to M80। ओके, कोड में जो डिफाइंड है ये एज पर द कोड है, दीज वैल्यूज आर एज पर कोड IS 456, इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। 2000 में M80 तक ही बना हुआ था, बट रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं एंड हम लोग M120 M130 तक बना चुके हैं, ओके। फॉर हैवी स्ट्रक्चर, वेरी हैवी स्ट्रक्चर, डैम हो गया या कोई और हैवी स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंडस्ट्री हो गया कोई, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोड आने वाला होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्रीट चाहिए, सो वो M120 M130 तक बन चुका है, बट हमारा कंसर्न सिर्फ M80 तक रहेगा, बिकॉज कोड में सिर्फ M80 तक डिफाइन कर रखा है, ओके। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमें पढ़ना है, इसको लिख लो, ये वाली चीजें लिख लो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिस्टिक कर्व। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक कर्व। ओके, हम प्रोबेबिलिस्टिक कर्व स्टार्ट करें उसके पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं मैं, जैसे हम लोग लिख रहे थे M20, ओके, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम उसमें आएंगे। ये जो 20 है दैट इज FCK, ओके, FCK, इट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये जो 20 है ना, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इस कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ below which not more than 5% of test specimens are allowed to fail. Not more than 5% of the test specimens are allowed to fail. अभी डेफिनेशन क्या लिखी है इसको समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं उससे बताता हूँ, ओके। मान लो अभी प्रोबेबिलिस्टिक कर्व पे आएंगे, आप किसी साइट पे हो, ठीक है, आप किसी साइट पे हो और आपको बनाना था लेट्स से फॉर एग्जांपल M25 ग्रेड कंक्रीट, M25 ग्रेड कंक्रीट ये बनाना था, और ये हमारा बनता है 1:1:2 के मिक्सचर से, ओके। सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्सचर कितना है, 1:1:2 M25। बट हुआ क्या, ये डिज़ाइन मिक्स भी है, नॉमिनल मिक्स भी है, ठीक है। अभी डिज़ाइन मिक्स क्या है, नॉमिनल मिक्स क्या है, वो चीज़ भी बताऊंगा। 1:1:2 ये बनाना था, बट हुआ क्या, यहाँ पे सिंस वी आर वर्किंग ऑन साइट, तो क्वालिटी जो होता है वो 100% नहीं आता है, ओके। तो क्या किया उन्होंने, M25 बनाने की जगह लेट्स से कुछ बना दिया M23। सीमेंट सैंड एग्रीगेट इतना डालना था, अब एक्चुअली डालेंगे तो लेबर्स ही, ओके, लेबर्स डालेंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से मिक्स कर दिया कि वो M23 M22 बन गया, स्ट्रेंथ कम हो गई। अब ये हम लोग पता कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, व्हाट एक्चुअली वी डू, ये M25 बनाना है तो हम इसकी क्यूब्स बनाते हैं, ओके।
सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को ऑब्वियसली सम वाटर, थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, 1:1:2 के रेशियो में हम लोग इसे ऐड करेंगे और इसके क्यूब्स बनाएंगे। लेट्स से हमने बनाए 100 क्यूब्स, ठीक है, 100 क्यूब्स बनाए ऑफ साइज 150 mm ईच। क्यूब है तो हर एक साइड कितना है, 150 mm है। अब 150 mm के क्यूब बनाए, मान लो 100 क्यूब्स बनाए, 1 2 3, ऐसे चलते चलते हम लोगों ने कितने बनाए, 100 क्यूब्स बनाए, ठीक है। अब इन सबको हमने क्यूरिंग किया 28 दिन तक, 28 डेज तक। फिर एक एक को उठाएंगे और इसको रखेंगे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। ओके, यहाँ पे ऊपर से लोड लगेगा, नीचे से लोड लगेगा, जिस पॉइंट पे टूट जाएगा, ओके, जिस पॉइंट पे टूट जाएगा हम उस स्ट्रेंथ को मेजर कर लेंगे। मान लो पहले वाले का जो स्ट्रेंथ आया दैट केम आउट टू बी 19.8 मेगापास्कल, दूसरे वाले का आया 20 मेगापास्कल, तीसरे वाले का 23 मेगापास्कल, चौथे वाले का 21 मेगापास्कल, पांचवे वाले का आया लेट्स से 20.6 मेगापास्कल, ओके 20.6। अब ऐसे चलते चलते दूसरे स्पेसिमेन भी होंगे जहाँ पे 26 भी आएगा, 28 भी आएगा, ओके 23 भी आएगा, इसके पास पास में आएंगे सारे 25 के, 5-10 ऊपर नीचे करते करते पास पास में आएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको अरेंज कर देते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इन सबको हम लोग अरेंज कर देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, इन सबको हमने अरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में और सबको अरेंज करते जाएंगे। यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, यहाँ पे 100 सैंपल्स को हमने अरेंज कर लिया। अब मान लो पहले वाले का जो स्ट्रेंथ आया है, समझ में आ रहा है, हमें M25 बनाना था, 1:1:2 पे वो बनता है, प्लस हम वाटर उसमें ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 1:1:2 में। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले का 19.8 जो सबसे कम आया उसे लिखते हैं 19.8, देन लिख लेते हैं 20, 22.6, 23.8, 24.3, ऐसा कुछ रहा होगा, 25.2, 25.8 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ। तो FCK का मतलब क्या है, FCK का मतलब है स्टार्टिंग के 5 सैंपल्स की स्ट्रेंथ को आप इग्नोर कर सकते हो और जो छठा आएगा दिस शुड बी ग्रेटर देन 25, तभी ये जो हमारा सैंपल बना है ये करेक्ट है। ओके, ये जो हमने ग्रेडेशन किया है दैट इज करेक्ट, ठीक है, आया समझ में। इसे हम लोग कहते हैं FCK। FCK, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से और बताता हूं, एक और एक्सप्रेशन में लिखते हैं। FCK का दूसरा मतलब क्या है, 5% बोल रहा है ना कि 5% हमारा मटेरियल फेल होना चाहिए, 95% तक वो पास होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ अ स्ट्रक्चर ड्यू टू मटीरियल इज ओनली 5%। ये इसका दूसरा मतलब है जो आपको सब लोग नहीं बताते या फिर थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। FCK को सब लोग बोलते हैं इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, कितने टाइम फ्रेम पे है, 5%, सॉरी 28 डेज पर। ओके, स्टार्टिंग के 5 हटा दो, फिर जो बचेगा वो हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए। FCK का दूसरा मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ अ स्ट्रक्चर ड्यू टू मटीरियल। मटीरियल का मतलब हो गया, बाय मटीरियल वी मीन आइदर कॉन्क्रीट और स्टील, या फिर ये दोनों कंबाइंड भी हो सकता है, इज ओनली 5%। सिर्फ कितना है, 5% चांस, 95% चांसेस है कि जो स्ट्रक्चर है, ओके, जो स्ट्रक्चर है वो मटेरियल के कारण फेल नहीं होगा। सिर्फ 5% चांसेस है कि जो स्ट्रक्चर है वो मटेरियल के कारण फेल हो सकता है। ओके, ऑलराइट, सो यहां तक हमने किया है। एक चीज और कर लेते हैं, दिस इज ये FCK हुआ। एक चीज और देख लेते हैं, डिजाइन मिक्स एंड नॉमिनल मिक्स।
नॉमिनल मिक्स, ठीक है। नॉमिनल मिक्स का मतलब क्या है, अप टू M25, अप टू M25 जिसके अंदर एक्सपीरियंस होता है, लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि हाँ 1:2:4 डालने पे M15 बन जाएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये हमारा क्या होता है, नॉमिनल मिक्स, जिसको हमें डिजाइन नहीं करना होता। इट इज डन बाय वॉल्यूम बैचिंग। ये कैसे होता है, वॉल्यूम बैचिंग से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डिजाइन मिक्स। अब देखो डिजाइन मिक्स में क्या होता है, डिजाइन मिक्स में हमें पूरे के पूरे कंक्रीट को डिजाइन करना होता है कि किस किस मटेरियल का कितना प्रोपोर्शन रहेगा, वो हमें डिजाइन करना होता है। तो दैट इज डिजाइन एंड ग्रेटर देन M25, M25 के ऊपर M30, M35, ये सारे क्या है, डिजाइन है। ओके, M25 ऐसा है जो किसी भी कैटेगरी में रख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। M25 के लिए जो स्पेसिफाइड है दैट इज 1:1:2, अप्रॉक्सीमेटली सेम दे देता है। आप इसको डिजाइन करोगे तब भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ आएगा। इसका जो कोड है दैट इज 10262 एंड दिस इज डन बाय वे बैचिंग। डन बाय वे बैचिंग, ठीक है। ये हमारी चीजें हैं। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिस्टिक कर्व। ओके, FCK देखेंगे, FM देखेंगे, मीन स्ट्रेंथ क्या होता है, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, इलास्टिसिटी देखेंगे और भी दूसरी चीजें देखेंगे जो कि हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है।